Now I am teaching you how to find out the complexity of by using master theorem function, master theorem, and these are decreasing function, and this is our fn. Now I can say that if I am talking about this tn is equal to tn minus 1 plus 1, if you will find out by the by substitution method, it will take much time it is taking, and it is sometime it becomes very typical. It is taking time and it is becoming typical, but by using master theorem, instantly you can find the solution for any problem. In this case, you can see here, it is written tn minus 1 plus 1 1. So plus 1 is fn. Now I'm saying that here some any constant is given. No, here two constant is given. Here three constant is given. Two coefficient is given. Here no coefficient is given. That means coefficient is 1. If no coefficient is given, what is the coefficient of this? Hello, One, sir. 1. One, sir. It is 1. So I can say that if coefficient is 1 in this all these three cases, coefficient is 1. If coefficient is 1, then we have to do and it is decreasing method. It is decreasing method and coefficient is 1. Then what will be our complexity? Our complexity will be n multiplied by fn. So n multiplied by fn. Fn is 1. N multiplied by fn. So it is complexity become on. Clear hai? Yes, sir. Now here also you can see coefficient is 1 and here fn is n. So we can see its complexity will be n into fn. So n multiplied by fn. Fn is n. So n multiplied by n, complexity is O n square. Clear? Yes, sir. Clear, sir. Now Similarly, sir, for log n. here also you can see n into that means coefficient is 1. So n into fn. So it is n log n. Now here you can see the coefficient is 2. So if coefficient is greater than 1, whether coefficient is greater than 1 or less than 1? Hello? Hello? Greater than one, sir. It is greater than 1. If coefficient, लाइट चली गई, अब देखो कितनी देर तक चलता है. ठीक है? Now you can see here, if coefficient is greater than 1, if coefficient is greater than 1, then we have to do fn multiplied by n raised to a by b. N raised to fn multiplied by a raised to n by b. So here you can see here, what is our a? It is our a. It is our b. It is our a. Coefficient I am talking about, that is a. And this decreasing, whatever decreasing here, that is b. It is a, it is b. So now I can see the complexity of this one. I can say that complexity of this one, I can say if value of a, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है यार. If a is greater than 1, if a, see our condition is that if a is greater than 1, so what will happen? We have to do fn multiplied by a raised to n by b. A raised to, it is, ठीक है, try to understand it. It is a raised to n by b. A raised to n by b. So now here you can see our a is 2, b is 1. A is 2 and b is 1. And our fn is 1. So we are finding a. Whether a is greater than 1. If a is 1, we have already seen. If a is 1, we have already seen complexity is, what is our complexity? N into, what was our complexity? If complexity क्या थी?
इस केस में n into n into n into fn. n into fn थी कॉम्प्लेक्सिटी इफ a is equal to 1. इफ a is greater than 1 तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कॉम्प्लेक्सिटी इज fn. सो व्हाट इज आवर fn? 1. सो 1 और इंटू a रेस टू n by b. a यहाँ पे क्या है? 2. यहाँ पे a क्या है? 2 है. तो a की जगह 2 रख देना और n की जगह n रख देना और b की जगह व्हाट इज b ईयर? 1. सो 2 रेस टू n by b क्या हो जाएगा? ये a की वैल्यू कितनी है? 2 है. a की वैल्यू कितनी है? 2 है और n है Yes, और sir. b यहाँ पे क्या है? 1 है. तो 2 रेस टू n by b. तो 2 रेस टू n और b की वैल्यू 1 है तो 2 रेस टू n. तो ये क्या हो जाएगा? fn इंटू 2 रेस टू n. a की वैल्यू 2 है, 2 रेस टू n. b की वैल्यू 1 है तो 2 by 1 तो 2 होता है तो 2 रेस टू n. a की वैल्यू 2 है, 2 रेस टू n. तो यहाँ पे वैल्यू हो गई fn 1 है, fn इंटू 2 रेस टू n. 2 रेस टू n. यहाँ पे वी विल सी हियर a is greater than 1 तो fn 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई और a की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 रेस टू n क्योंकि n बाई b 3 हो जाएगा. n की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? 1 है और a की वैल्यू 3 है, 3 रेस टू n बाई b और b की वैल्यू 1 है तो 3 रेस टू n. तो ये हो गया 3 रेस टू n. इन दिस केस fn इज n तो n इंटू n मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 2 है, 2 रेस टू n बाई b की वैल्यू भी 1 है तो n रेस टू 2 रेस ये हो जाएगा 2 रेस टू n. fn n है तो n इंटू 2 रेस टू n बाई b की वैल्यू 1 है तो 2 बाई n हो जाएगा. क्लियर है इतना? हेलो? Yes, sir. Clear है sir. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम सेइंग दैट Yes, sir. हाँ लाइट एक्चुअली लाइट इज नॉट कमिंग. ठीक. हाँ next time saying that it is Tn is equal to Atn minus b plus Fn. So I have written same thing over here. General form of recurrence relation है a की value greater for finding the master theorem for the decreasing function. a की value 1 से बड़ी होनी चाहिए. That means it must be greater than 1. a greater than 0. Sorry. a value must be greater than 0. तो in our case it was 1, it was 2, it was 3, it was 2. तो a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और b की वैल्यू आल्सो 0 से बड़ी होनी चाहिए और fn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? nk के बराबर हो जाएगी. दैट मीन्स इट विल बिकम टू nk. एक मिनट ये थोड़ा हाँ. और वेयर देखो यहाँ पे fn क्या है? fn इज n रेस टू k. fn क्या है? n रेस टू k. यहाँ पे समझो fn क्या है? व्हाट इज अवर fn? n रेस टू k. जैसे k n रेस टू k यहाँ पे कुछ नहीं है तो रेस क्या होगा? 1 होगा. यहाँ पे n रेस टू k, n रेस टू k मतलब 1 आ रहा है तो n रेस टू कितना हो जाएगा? n रेस टू 0 1. यहाँ पे n रेस टू 0 1. यहाँ पे log n है तो log n में क्या है? यहाँ पे n रेस टू k तो है ही नहीं है तो n रेस टू k मतलब कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. n रेस टू k मतलब k की वैल्यू कितनी है? 0 है. यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई? n रेस टू 1 हो गया. यहाँ पे जब 1 है तो n रेस टू 0 हो जाएगा मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. क्लियर है इतना? हेलो? हेलो? Sir, ये K वाला सर K वाला नहीं समझ में आया सर. अरे फिर यार से बताइए. जैसे n रेस टू कुछ नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी ऊपर? व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? ऊपर 1 कितना sir, है? 1. 1 होगी तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 1. 1. क्लियर है? अगर n रेस टू Yes, sir. 2 होता तो k की वैल्यू व्हाट विल बी द kth वैल्यू? 2. 2 होता. इफ 1 है तो व्हाट विल बी द n रेस टू कितना 1 होता है? n रेस टू कितना 1 होता है? 0 sir. 0 होता है तो And k की वैल्यू 0 कितनी 1. हो गई? 0 हो गई. n की पावर नहीं, k की पावर 0. क्लियर है? Yes sir. And n रेस raised to टू 0 1 होता k है सर तो तो K n का. रेस टू k तो k की वैल्यू 0. नाउ यहाँ पे n रेस टू कुछ है ही नहीं है. ठीक है. ये तो log n है. इट इज log n नॉट n रेस टू. तो k की वैल्यू क्या होगी?
हेलो, जीरो हो जाएगी सर, कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब 1 है। इफ नथिंग इज देयर दैट मींस इट इज 1, 1 into log n। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस 0, सर, 1 मतलब लॉग n रेस टू 0 मतलब 1। तो के की वैल्यू 0, हियर के की वैल्यू 1 है, हियर के की वैल्यू n रेस टू 0 1, तो के की वैल्यू 0। क्लियर है इतना? यस क्लियर सर, है? क्लियर है। नाउ आई एम सेइंग दैट, ठीक है, के की वैल्यू समझ में आ गई, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू समझ में आ गई, यू अंडरस्टैंड बी वैल्यू, ए वैल्यू एंड केथ वैल्यू, एन रेस टू वट एवर इट इज केथ वैल्यू। So I am saying that kth value is greater than equal to 0, या तो k की वैल्यू 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 0। तो इसका जो देर आर 3 केसेस इन दिस, इसमें केसेस क्या है? एफ एन मतलब एन के बराबर है, एफ एन इक्वल टू एन के। नाउ देर आर 3 केसेस, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ए वैल्यू लेस देन 1। तो यहाँ पे तुमने देखा ए वैल्यू वाज 1, तो अपना फॉर्मूला क्या था? ए वैल्यू वाज 1, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी? एन इंटू एफ एन। इफ ए वैल्यू वाज 1, अवर फॉर्मूला वाज एन इंटू एफ एन, तो एन इंटू एफ एन की वैल्यू 1, तो एन आ गया था। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट, एन इंटू एफ एन आ रहा था, एन इंटू एफ एन की वैल्यू एन, तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर। एन इंटू ए बी कॉफिशिएंट 1 है, तो आई एम सेइंग दैट इफ ए वैल्यू इज 1, तो आवर फॉर्मूला बिकम एन इंटू एफ एन, ओ एन इंटू एफ एन। if a is greater than 1, इस केस में we have seen a was greater than 1, 2 3 2, मतलब a was greater than 1। if a is greater than 1, तो अपना फॉर्मूला क्या था? fn into a raised to n by b। तो fn into a raised to n by b we have already find out, a is greater than 1, तो fn into a raised to n by b से we have solved these 3 problem। क्लियर है इतना? हेलो, यस सर। तो ये दिस इज मास्टर थ्योरम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो गई मास्टर थ्योरम? इफ ए इज लेस देन 1, अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 होती, मान लो 2/5, 2/4, 2/4, 1/3, तो अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 होती, तो इन दैट केस क्या होता? एफ एन के बराबर हो जाता। मतलब इफ दिस वैल्यू 2/5, 3/5, 2/3, मतलब 1 से छोटा होता ए की वैल्यू, इफ ए इज लेस देन 1, तो अपना कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता? लास्ट वाला हो जाता। क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर है सर। आई एम सेइंग दैट अगर मेरा होता 2/5 या 2/3, 2/3 टी एन माइनस कुछ होता, समथिंग n-2 जो भी होता, या n-1 ही कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा, n-1 +1, मान लो इस टाइप से कुछ होता, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती? ए की वैल्यू, व्हाट इज ए वैल्यू हियर? 2/3, मतलब लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो अपना आउटपुट क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? अगर मान लो यहाँ n होता, तो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाती? कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एफ एन के बराबर होता हमेशा। अगर ए वैल्यू इज लेस देन 1, तो ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती? एफ एन के बराबर। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन। और अगर 1 होता है तो एन इंटू एफ एन होता है, और अगर ग्रेटर देन होता है तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एफ एन इंटू ए रेस टू एन बाई बी होता है। क्लियर है? हेलो, यस सर। क्लियर ना? ठीक है, इरेजर। Hello, so you have already seen this formula for decreasing function. A is equal to 1, A is greater than 1, and A less than 1. So these are the formula for that. So we will apply in this formula, then we will get the complexity. Second, hello. Till now we have seen the formula for सर। decreasing function. Till now we have seen the formula for decreasing function, but now it is dividing function. Now what type of function it is? It is dividing function. It is not n minus 2 या n minus 3. It is
n by b, n divided by b. So it is decrease dividing function. Which type of function it is? Dividing function. Dividing function. To find out the complexity in dividing function we are doing, मतलब it is basic condition a is greater than equal to 1, b is greater than 1, ये condition follow होनी चाहिए. तो in this case there are 3 cases. कितने cases हैं इसके? There are actually 3 cases. 3 cases कौन से हैं? Okay, if it is dividing function, then there are 3 cases to find out the complexity. Case number 1, log a raised to base b. log a raised to base मतलब base b है, log base b raised to a. ठीक है, तो यहाँ पे greater than k है. If log b raised to a, if it is greater than k, तो अपना कॉम्प्लेक्सिटी होगा n raised to log base b raised to a. क्लियर है? क्लियर है? दिस इज फॉर्मूला. सो थीटा और o, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थीटा और o, एनीथिंग यू कैन राइट. नाउ आई एम सेइंग दैट log b raised to a, this is our case 1 condition. केस 2 कंडीशन log a b अगर k के बराबर होगा, then there are 3 condition to find out the complexity. Then we have to find out the complexity by using p. अगर log a b k के बराबर होगा तो 3 केसेस होंगे. p क्या ग्रेटर देन -1 है, p इज इक्वल टू -1 है और p लेस देन -1, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज a होंगे. क्लियर है इतना? log a b अगर सर p क्या है सर? अरे नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दैट. अभी तक इतना सर आप बोले क्लियर है इसीलिए मतलब ये क्लियर है. क्लियर. log a b अगर ग्रेटर देन k है, then complexity will be this one. If log a b is equal to k, तो complexity will depend on some constant p. Yes. और p का चेक करेंगे, then we will get this complexity. Now I am saying, देखो इक्वल टू देख लिया, ग्रेटर देख लिया, इक्वल टू देख लिया, और थर्ड केस इसका है if log a b is less than k, तो then also it will depend on p. कि p की वैल्यू a होगी तो दिस वन कॉम्प्लेक्सिटी, और a होगी तो दिस वन कॉम्प्लेक्सिटी. क्लियर है इतना? हाँ सर, p को छोड़ के सब क्लियर है ना तीनों केस? क्या पहले में log a b इज ग्रेटर देन k, सेकंड में log a b इज इक्वल टू k, थर्ड में log a b इज लेस देन k. अगर ग्रेटर और इक्वल अगर इक्वल टू और लेस देन है k से, तो इन दैट केस इट विल डिपेंड ऑन p. ठीक है? ओके. यस सर. ओके सर. नाउ आई एम सेइंग दैट कि एक्चुअली अपना जो फॉर्मूला होता है, हाँ सी fn मतलब अपना, सपोज दिस इज atn by b प्लस fn. मान लो मेरा fn इज n के log रेस टू log pn, log रेस टू pn. क्लियर है? fn मेरा किसके इक्वल है? हेलो, log रेस टू pn सर, मतलब n रेस टू k log रेस टू pn. क्लियर है? क्लियर है सर? बिल्कुल. तो नाउ p क्या होगा? जो log के ऊपर पावर होगा, दैट इज p. समझ गए सर p क्या है. और k क्या है? जो n के ऊपर पावर है, दैट इज k. ठीक है? ओके सर. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये है अपना क्वेश्चन. दिस इज अवर क्वेश्चन. tn इज इक्वल टू 2tn by 2 plus 1. ठीक है? दिस इज अवर क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट के ये कौन से उसमें बिलोंग कर रहा है. फर्स्ट थिंग इट इज डिवाइडिंग फंक्शन. पहली चीज क्या देखेंगे, इट इज किस टाइप का फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है? डिवाइडिंग फंक्शन सर. इट इज ए डिवाइडिंग फंक्शन. So now we have to check out the cases. पहला केस क्या था? log a b is greater than k. पहला केस क्या था? log a b is greater than k. log a b is greater than k. It was our first case. तो log a b की वैल्यू देखेंगे. a की वैल्यू क्या है? What is a वैल्यू? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a वैल्यू इज 2.
2, बी की सर। वैल्यू क्या है? नीचे में डिनोमिनेटर 2 हो गया सर, 2। 2। तो log ए बी, तो log ए बी मतलब बेस टू 2, अगर ए log बेस टू बी रेस टू मतलब ए, तो फिर उस केस में log बी ए का कितनी वैल्यू आएगी? बी की जगह 2 रख दो, दैट इज बेस, और ये 2 हो गया। तो log बेस टू 2 2 का वैल्यू कितना आता है? इट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? यू हैव टू फाइंड आउट द यस सर, वैल्यू। 1। 2 1 जा 2, तो 1 टाइम गया, तो इट इज 1। क्लियर है? जी सर। log 2 रेस टू 2 बेस टू 2 है, और यहाँ पे 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 1 जा 2, तो वैल्यू इज 1। तो नाउ वी विल सी व्हाट इज केथ वैल्यू। यहाँ पे एन के है क्या? कोई नहीं है, दैट मीन्स इट इज रिटर्न 1। एफ एन में देखेंगे एन के log पी एन, तो यहाँ पे एन के क्या है? 1 है, कोई वैल्यू नहीं है, दैट 1 मीन्स है इट इज तो 1। तो इफ इट इज 1, तो यस के की वैल्यू कितनी हुई? सर। कितनी के की वैल्यू हुई? सर कुछ नहीं है तो सर पावर 0 हो गया ना सर। हाँ, एन रेस टू 0, दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी हो गई? एन के मतलब के की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो इफ के वैल्यू इज 0, तो अभी कौन सा बड़ा है? log ए बी, इन दिस केस, इन अवर दिस केस log ए बी इज ग्रेटर देन के, और के इज ग्रेटर देन log ए बी, या इक्वल है? कौन सा केस है? कौन सा ग्रेटर है इसमें? log ए बी ग्रेटर के है या नहीं है? के की वैल्यू वी लॉग हैव ए बी ऑलरेडी सर है, के तो के 0 है सर, लॉग ए बी 1 है तो लॉग ए बी बड़ा हो गया। log ए बी बड़ा हो गया, तो log ए बी इज ग्रेटर देन के वाज अवर फर्स्ट केस। अवर फर्स्ट केस यस सर। log ए बी इज ग्रेटर देन के, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? भड़वा जबर कॉम्प्लेक्सिटी, एन रेस टू log ए बी, एंड लॉग, एन यस रेस टू log ए बी। ठीक है? यस सर, यस तो सर। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी ये अपने केस 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज सेटिस्फाइंग अवर केस 1। इफ log ए बी इज ग्रेटर देन के, तो कॉम्प्लेक्सिटी दिस। तो इट इज सेटिस्फाइंग अवर फर्स्ट केस, log ए बी इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू 0 है, एन रेस टू के मतलब के की वैल्यू 0, एन रेस टू 0 1, तो के की वैल्यू 0, तो log ए बी इज 1, एंड के वैल्यू इज 0, so log ए बी इज ग्रेटर देन के। इट इज सेटिस्फाइंग अवर फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में वैल्यू कितनी आ रही थी? व्हाट वाज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फर्स्ट केस? एन टू द पावर लॉग ए बी, तो लॉग ए बी का वैल्यू 1 है तो एन टू द पावर 1 हो जाएगा। तो अपना क्या था? एन रेस टू log ए बी, मतलब जो इसकी वैल्यू आ रही है, जो ग्रेटर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। log ए बी वाला ग्रेटर है, तो एन रेस टू जो ग्रेटर है उसकी वैल्यू आ गई, बना गई एन रेस टू 1। यस सर, क्लियर? क्लियर है सर। नेक्स्ट, इन दिस केस यू सी, इस केस में बताओ log ए बी की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 रेस टू 2 4, तो 2 बार भाग गया, दैट मीन log की वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 2 आ गई, 2 2 2 है जा सर, 4। 2 ले। ठीक है? और के की वैल्यू कितनी है? एन रेस टू के, तो के की वैल्यू कितनी है? 1 है, एन रेस टू 1, तो के की वैल्यू यस सर, कितनी हो 1 गई? है। 1। और log वाला तो दिया नहीं गया है यहाँ पे, log इन नॉट केस 1 गिवन, को ही फॉलो कर। नहीं सर, हाँ नहीं तो दिया पी होगा। की वैल्यू 0 हो गई, बिकॉज log वैल्यू इज नॉट गिवन हियर, तो log दैट मीन्स log 0 इज 1 होता है, तो पी की वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, log ए केस, बी इज यस सर, ग्रेटर केस 1 देन को के, फॉलो कर रहा है। तो केस 1 को फॉलो कर रहा है, दैट इज एन स्क्वायर, मतलब एन रेस टू दिस 1। क्लियर है? यस सर, क्लियर? क्लियर है सर। सेम इन दिस केस आल्सो यू कैन सी 8t ny2 प्लस n, तो log a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 2 है, तो log बेस 2 का 8, 2 3 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 3 बार गया, तो इट इज 3। एंड k की वैल्यू कितनी है? n रेस टू k, तो k की वैल्यू 1, n रेस टू 1, तो k की वैल्यू 1, तो n रेस टू a वाली वैल्यू आ गई। इन दिस केस आल्सो यू क्लियर कैन है। सी सेम थिंग। ठीक है? यस सर, केस 1 क्लियर है। हाँ, in this case you can see सेम थिंग हियर हैपनिंग, के की एन रेस टू के, ये 1 है, तो एन रेस टू के मतलब एन 0, तो के की वैल्यू 0, के इज इक्वल टू 0, log ए बी, तो 3 3 जा 9, तो 2 बार गया, तो log ए बी की वैल्यू 2 हो गई, तो इसकी वैल्यू एन रेस टू स्क्वायर हो गया। क्लियर है इतना? जी सर, क्लियर है सर। तो ये सब हो जाएगा।
यू विल डू इट। हाँ सर, ए वाला देख लो, सर केस 2 का बता दिया सर, इक्वल टू वाला बता दूंगा, दोनों। आई विल टेल यू। ओके ओके। नाउ आई एम सेइंग फर्स्टली सी दिस केस, ये वाला केस और देख लो। नेक्स्ट लॉग ए बी, लॉग मतलब 8, ये 8 हो गया, बी 2 हो गया, तो लॉग ए बी की वैल्यू 8, लॉग 8 बेस टू 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दैट मीन 3, तो लॉग ए बी की वैल्यू आ गई 3, एंड लॉग ए बी की वैल्यू, व्हाट विल बी द लॉग ए बी वैल्यू 3, तो log ए बी की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, और k की वैल्यू क्या है 1 है, तो log ए बी इज ग्रेटर देन 1। 1, और log ए बी की वैल्यू 3 आई थी, तो n क्यू। क्लियर है? हाँ, नाउ हो केस गया नंबर बड़ा 2, तो। नाउ केस नंबर 2, नाउ इन केस नंबर 2 इट इज रिटन tn इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस n1, तो लॉग मतलब इक्वल वाला केस था। केस 2 कौन सा था कि लॉग ए बी की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू के, तो लॉग ए बी देखा 2 रेस टू 2, 2 बन जा 2, तो इसकी वैल्यू बना गई, के की वैल्यू कितनी है n/k, तो के वैल्यू इज 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन लॉग ए बी इज इक्वल टू के, लॉग ए बी इज इक्वल टू के, और यहाँ पे लॉग वाला कोई वैल्यू दिया है, नहीं दिया, एफ एन में कोई लॉग वाला वैल्यू दिया है, नहीं दिया, तो पी नहीं की सर, वैल्यू इसलिए P 0 हो गया। पी 0 हो गया। तो इन दिस केस यू विल सी अगर log ए बी के बराबर है, तो अपना कंडीशन क्या था, log ए बी इज इक्वल टू के, तो व्हाट वाज आवर कंडीशन, if log ए बी इज इक्वल टू के, log ए बी इज इक्वल टू के, देन इट डिपेंड ऑन p पे डिपेंड करता था कि क्या होगा, तो p ग्रेटर देन -1 है तो ये होगा, p इज इक्वल टू -1 तो ये होगा, p लेस देन -1 तो ये होगा, log ए बी के बराबर है, तो ये 3 कंडीशन थी p के लिए। तो इन दिस केस log ए बी इज इक्वल टू के है, p की वैल्यू 0 है, तो अपनी जो कंडीशन थी वो एक कंडीशन मतलब 3 कंडीशन थी, p इज ग्रेटर देन 0, p लेस देन 0, या p मतलब -1 वाली थी कंडीशन, p इज ग्रेटर देन -1, p इज इक्वल टू -1, p लेस देन -1, तो ये p क्या है, लेस देन -1 है, ग्रेटर देन -1 है, या इक्वल टू -1 है? हेलो, ग्रेटर देन -1 हो गया सर ये। ग्रेटर देन -1 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन थी, देयर वाज ये कंडीशन, वहां पे कंडीशन जो थी, ये कंडीशन थी, देयर वाज ये कंडीशन, इफ p इज ग्रेटर देन -1, इफ p इज ग्रेटर देन -1, अगर p ग्रेटर देन -1 था, तो व्हाट वाज आवर केस, तो अपना केस था कि मतलब अपन लोगों को वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ एफ एन को मल्टीप्लाई कर देना है log n के साथ, तो इन दिस केस यू, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, उसका जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वहां पे n/k, n/, है, मैं लिख देता हूँ ऐसे n/k, n/k, ठीक है, n/k, और log रेस टू p प्लस n, p प्लस 1, p प्लस 1, और ये बन p प्लस 1 n, इट वाज आवर फॉर्मूला, ठीक है, इट वाज अवर फॉर्मूला n/k log p प्लस 1 n, ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, कि इस केस में देखो होता ही यूं है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि n/k k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, व्हाट इज केथ वैल्यू 1, तो सर n/k हो गया n/1, नाउ log p प्लस 1, p की वैल्यू 0 है, p प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो वन, log 1 हो रेस गया टू सर। 0 प्लस 1 1 हो गया, तो log 1, और बाद में n है तो n आ और गया, n ठीक है, और समझ। यू, और इसका दूसरा तरीका ये है, इफ यू डोंट वांट टू राइट लाइक दिस, यू हैव टू डू fn कितनी वैल्यू है यहाँ पे, व्हाट इज fn वैल्यू, n, fn क्या है यहाँ पे, सर सर हाँ,
n है, इट इज अवर fn, तो fn इंटू लॉग एन कर दोगे तो यही आ जाएगा, fn की वैल्यू n है और मल्टीप्लाई log n से कर दोगे तो इट विल बिकम fn log n, तो n इंटू लॉग एन, तो ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। क्लियर है? यू कैन फाइंड आउट यस बाई सर। दिस। और अगर इक्वल टू के है और अपनी कंडीशन है p इज ग्रेटर देन -1, तो क्या हो जाएगा, fn इंटू लॉग एन, तो fn की वैल्यू n है और log n मल्टीप्लाई करती है। क्लियर है इतना? जी सर क्लियर है सर। in this also, in this case also you can see टाइम कम बचा है, नाउ टाइम इज गोइंग टू ओवर, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, ठीक है? वैसे भी कम टाइम बचा है अटेंडेंस के लिए, ठीक है? नाउ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।